नमस्कार, वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल। आप सभी का आरसीआई के नवशिखर चैनल में स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है ब्रेल टीचिंग और आज के हमारे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर सीडी तंपोली, हु इज वर्किंग फॉर लास्ट 40 years in this field and presently working as director in National Association for Blindness, also known as NAB. He was in the Department of Special Education in NCERT and was principal in Government School for Blind Children. He has done his M.Ed from USA, and another expert is Mr. Dhirendra Singh, who is a special educator and has done M.Com, M.Ed in Special Education for Visual Impairment. Now we are starting with our discussion. If you want to ask any query, you can call on our toll-free number 1800-11-2008, 265-11613. हमारा फैक्स नंबर है 265-11609. Welcome, sir. Sir, as you know, last week we inaugurated this program of Braille teaching. Now we are carrying on our discussion that you will teach us. Sir, please. Yeah. Welcome, my viewers and listeners. As you know, we started this Braille teaching program on last Thursday, where I had discussed about the life and achievements of Louis Braille. Before we start learning the script of Braille, I thought it was very important for all of us to know about this great man who not only invented the system, but he opened the vistas of learning of millions of blind children throughout the world. Now, what the Braille system, you will be surprised, it is nothing but a permutation and combination of 6 dots, and the 6 dots, by virtue of those 6 dots, you will be surprised, you can write any language of the world, whether it's Hindi or Bengali or Sanskrit or Japanese or French or German. Just imagine the importance of those 6 dots. You can write. Basically, Braille is phonetic in nature, as I told you last time. A is in Hindi, O in Bengali, and B is ba, bo, C is cha. But of course, the other alphabets are more, so there are some special devices. Now, Braille system consists of 6 dots. Can you see this cube? And there are 6 dots over here. There are 3 dots on the left and 3 dots on the right. For our convenience, we are going to number those dots. The left hand top dot will be number 1, left hand middle would be 2, and left hand bottom would be 3. Similarly, right hand top would be 4, the right hand middle dot would be 5, and the right hand bottom dot would be 6. So the child first has to know the position of these 6 dots. Once this is ingrained in the mind of the child, then picking up Braille is very systematic. I would be teaching you the 63 possible combinations of the 6 dots, and basically the English language, the English alphabet or the French alphabet is very systematic, and I would demonstrate that one by one. So you can understand the 6 dot position. I will again explain you. The top 2 dots are dot number 1 and 4. The middle 2 dots are dot number 2 and 5. And the bottom 2 dots are dot number 3 and 6. Now, by changing the direction, I hope you can see this. Over here you can see that there are 3 dots on the left, 1, 2, 3, and the 4 dot is not there. It's 1, 2, 3, 5, 6. Or if you turn it this way, you can see it's what are the dot numbers. It's 1, 2, 4, 5, 6. What is the dot number over here? It's 2, 3 and 6. And this is 1, 4 and 5. This is 1, 2, 4, 5, 6, and so on. Anyway,
So once the position of the dot, whether it's on the right hand side or on the left hand side, you can easily make out. अब हमारे नॉर्थ इंडियन वालों के लिए मैं थोड़ा सा हिंदी में बता दूं, ब्रेल सिस्टम ये 6 डॉट की माध्यम से बना है। 6 डॉट के घुमा फिरा के 63 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है और इसी 6 डॉट के माध्यम से आप हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हैं। और ये 6 डॉट के लिए इसलिए इतना महत्व है। और 6 डॉट का पोजीशन मैं फिर और एक बार बता दूं, ये जो 6 डॉट आपको यहाँ दिख रहा है, इसमें देखिए डॉट बायां बाजू के ऊपर वाला जो है उसको हम डॉट नंबर 1 बोलेंगे। सॉरी, दाहिना बाजू आपके तरफ बायां बाजू होगा ना, तो आई एम पुटिंग इट टुवर्ड्स योर। आपका बायां बाजू का टॉप है 1, बायां बाजू का मिडिल है 2 और बायां बाजू का ये है 3। सिमिलरली राइट हैंड में आपका है 4, 5 और 6। दाहिना बाजू के ऊपर है 4, दाहिना बाजू का ये है 5 और दाहिना बाजू के नीचे है 6। तो ये 6 बिंदु से हमारे सारी अल्फाबेट्स बनती है। अब अंग्रेजी या फ्रेंच भाषा की जो सिस्टम है वो बहुत सरल है, जिसके बारे में मैं आपको अब बताना चाहूंगा। अंग्रेजी का ए से मतलब ब्रेल को हम 7 लाइन में बांटेंगे। पहली लाइन जो है वो ए से जे तक बनता है और उसकी विशेषता यह है कि हम डॉट नंबर 1, 2, 4 और 5 को इस्तेमाल करते हैं, अर्थात हम डॉट नंबर 3 या 6 को इस्तेमाल करते ही नहीं है। अब आपका ए जो है वो होगा डॉट नंबर 1। डॉट नंबर 1 आप इसमें दिखाओ। हाँ, डॉट नंबर 1 देखिए, ये बाएं बाजू का ये है। और बी है डॉट नंबर 1, 2, 1, 2, ये देखिए 1 और 2। सी है 1, 4, डॉट नंबर 1, 4। डी है डॉट नंबर 1, 4, 5। आपको दिखाई दे रहा है? अब उस स्लाइड में भी है ना? अच्छा। ई है डॉट नंबर 1 और 5। एक एक करके निकाल के दो ना मेरे को। ये ई है डॉट नंबर 1 और 5। एफ है डॉट नंबर 1, 2, 4। 1, 2, 4 दिखाई दे रहा है आप लोग को। जी है डॉट नंबर 1, 2, 4, 5। मैं ये कुछ स्टूडेंट्स होने से उसको मैं पूछ भी लेता, अब वो सिस्टम यहाँ है नहीं। और ये एच है 1, 2, 5। आई है डॉट नंबर 2 और 4। दिखाई दे रहा है आपको? उस स्लाइड में भी है ना? और जे है डॉट नंबर 2, 4 और 5। यदि किसी बच्चे को ये 10 लेटर्स आ जावे ए से जे तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो वो बाकी सारा अल्फाबेट लिख सकता है। तो सर अल्फाबेट्स ए टू जे फर्स्ट लाइन में आते हैं। हाँ। और उसमें हम डॉट्स 3 और 6 यूज नहीं करते हैं। अर्थात ए से जे तक जितने भी अक्षर है 10, इसमें केवल हम डॉट नंबर 1, 2, 4 और 5 यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट लाइन में जब जाएंगे, उसकी विशेषता यह कि वो पहला लाइन बिल्कुल सेम रहेगा, उसके साथ डॉट नंबर 3 हम एक एक कैरेक्टर के साथ, ए का डॉट नंबर था 1, उसके साथ डॉट नंबर 3 ऐड कर दीजिए। 1, 3 होने से वो के हो जाएगा। के कहाँ है आपके पास? ये के है डॉट नंबर 1 ए 1 था, उसके साथ 3 लगा दिया तो के हो गया। बी के साथ 3 लगाने के बाद क्या होगा? एल होगा। एल देखा
1 2 बी था, उसके साथ 3 नंबर लगा दिया तो एल हो गया। और इसके बाद सी था 1 4, उसके साथ हमने 3 लगा दिया तो एम हो गया। एंड देखा, डी था 1 4 5, इसके साथ हमने 3 ऐड कर दिया तो एन हो गया। और ई के साथ भी डॉट नंबर 3 लगाएंगे हम, ये ओ हो गया। डॉट नंबर 1 3 5, 1 5 was E, you add 3 it becomes E, O. P. F was 1 2 4, you add 3 you get 1 2 3 4. Q 1 2 4 5 था G, उसके साथ आपने 3 ऐड किया तो हो गया Q। नेक्स्ट 1 2 5 था H, उसके साथ हमने 3 ऐड कर दिया है, सो इट्स बिकम R। टू और 4 था I, you've added 3 to it, so it becomes S. And J was 2 4 and 5, you add 3, so you get 2 3 4 5, this is T. So by adding dot number 3 to the first line, which was A to J, 10 letters, you get the next 10 alphabets, which is K L M N O P Q R S T. So ये 20 alphabets तो आपको समझ आ गया। If you can remember the first 10 alphabets, then you can add 3 and get the next 10 alphabets. Now we would be going to the third line, which starts from U. Now before I start the third line, let me tell you, Louis Braille was a Frenchman. In the French alphabet there are 25 characters, they don't have the letter W. In other words, you have dot number 1 U V X Y Z, you don't have the letter W. So the alphabets are A to Z excluding W. तो सर अगर जो वर्ड्स होते हैं W से स्टार्ट होते हैं तो फिर आई एम कमिंग टू दैट फोर्थ लाइन, और बाद में मैं बताऊंगा आपको। जी सर। अब मैं तो इन अदर वर्ड्स हम अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट लाइन के साथ डॉट नंबर 3 6 ऐड करके हमको थर्ड लाइन मिलेगी। ए का डॉट नंबर था डॉट नंबर 1, उसके साथ 3 6 लगाने के बाद क्या होगा, 1 3 6, 1 was A, you add 3 6 you get U. ओके, सिमिलरली B के साथ 3 6 लगाइए, B का डॉट नंबर क्या था 1 2, 1 2 के साथ आप 3 6 ऐड कर दीजिए, you get V. In other words, the dot numbers are 1 2 3 6. X U V, W नहीं है ना, W I'm coming to that later on. Dot number 1 and 4 was C, and you add dot number 3 6 to it, you get X. In other words, the dot numbers are 1 3 4 and 6. Y is D plus 3 6. Y was 1 2 4, sorry 1 4 5, you add 3 6 to it, so it comes to 1 3 4 5 6. Okay, by adding dot number 3 6 to the letter E, E was 1 and 5, you add 3 6, you come to Z. Now mind you, over here we have added 3 6 to the first 5 characters A B C D E. Similarly, you can even add 3 6 to the next 5 characters F G H I J. So what they would be, they are different characters. I won't go into the contraction part or whatever it is, but the dot numbers I will show you. देखा and वाला देखा,
सर मैं यहाँ एक क्वेश्चन पूछना चाहती हाँ हूँ। जरूर। सर जैसे ये आपने बताया कि डॉट्स के अलग अलग अल्फाबेट्स होते हैं, लेकिन पोजीशंस अगर गलती से बच्चे से चेंज हो जाती है तो डॉट्स की भी मीनिंग चेंज हो जाएगा, बिल्कुल। तो सर करेक्ट पोजीशन पता कैसे चलेगी कि हमें होल्ड कैसे करना है इसको? देखिए ऐसा है कि हमारे ब्रेल सिस्टम में जो ब्रेलर्स है जो हम लिखते हैं ना, उसमें ब्रेल के 6 डॉट के लिए देयर आर 6 कीज, यू जस्ट प्रेस देम टुगेदर एंड इन द ब्रेल स्लेट, जो छोटे बच्चों को हम ब्रेल स्लेट से सिखाते हैं, दिस इज आई वुड नॉट अप्रूव दिस सिस्टम, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ब्रेलर्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड आई एम ट्राइंग टू डेवलप अ थिंग विच इज नोन एज प्लस पॉजिटिव ब्रेल। पॉजिटिव ब्रेल मतलब जैसा हम दबाएंगे, जैसा हम पढ़ेंगे, वो डॉट उभर के आते हैं। व्हाट द चाइल्ड डज इज देयर इज अ स्मॉल सेल ऑफ 6 डॉट्स इन ईच ए, और ठीक उसके यदि एक डॉट इधर से उधर हो जाए, इंस्टेड ऑफ punching dot number 2, if he punches by mistake dot number 3, then B would become K. Similarly 1 4 is C, by mistake 4 की जगह में वो 5 आ जाए तो that would, the letter would totally change. Brailler system से हम ये करेंगे, but these are the intricacies of Braille only. You have to punch the right dot, or you have to press the right key to get the right alphabet. Now as I was talking about the third line where I showed you कि A से E तक लिखने के बाद 3 6 ऐड करने के बाद हमारा U से Z तक आया. Now if we have to add dot number 3 6 to F, what will be the dot numbers? The dot number of F is 1 2 4, and you add 3 6 to it, it will become 1 2 4 3 6 or 1 2 3 4 6, whatever way you call it. F के साथ हमने 3 6 ऐड कर लिया. Now G के साथ ऐड करने के बाद you will get G is 1 2 4 5. वो है आपके पास अल्फाबेट्स? वो यहाँ नहीं है ना, राइट? आपके इसमें है, उसमें दे दिया ना. G is 1 2 4 5. You add 3 6. Then you get all the 6 dots. 1 2 3 4 5 6. This is G plus 3 6. H plus 3 6 would be, H was 1 2 5. You add 3 6 to it, you get 1 2 3 5 6. I के साथ आप 3 6 ऐड करिए. So I was 2 4. You add 3 6 to it, you get 2 3 4 6, and adding 3 6 to J would be 2 3 4 5 6. What are they? That I'll come to that later on. So we have covered the first 3 lines, and how many characters have we covered so far? 10 in each row, so 10 into 3 is 30. 30 characters we have covered so far. And as I told you, there are 63 possible combinations. The first line, I'll again repeat, consists of dot number 1, 2, 4 and 5. We do not include 3 or 6 in the first line. The second line consists of the same as the first. We add dot number 3 to each character of the first line. And for that we get from from K to T. The third line we add dot number 3 and 6, and we get the next 10 characters, which starts from U, and then there are other alphabets which I would be coming to that later on. So we have covered 30 characters so far, 10 in each line, and we've covered 3 lines. What about the fourth line? The fourth line would be adding only 6 to the first line. फर्स्ट लाइन के साथ आप ओनली ऐड 6 करिए. सेकेंड लाइन में आपने 3 ऐड किया था, थर्ड लाइन में आपने 3 6 ऐड किया, थर्ड लाइन में केवल डॉट नंबर 6 ऐड करिए. ऐड 6 टू द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच कैरेक्टर. द फर्स्ट लाइन वॉज A वॉज 1, यू ऐड 6, सो इट बिकम्स 1 6. आपका उस स्लाइड में है.
The B was 1, 2 plus 6 would be what? 1, 2, 6. C was 1, 4. 1, 4 plus 6 is 1, 4, 6. D was 1, 4, 5. Adding 6, you get 1, 4, 5, 6. E was 1, 5. To that you add dot number 6, you get 1, 5, 6. By adding dot number 6 to F, F was 1, 2, 4, you add 6, you get 1, 2, 4, 6. Similarly, by adding 6 to G, G consists of 1, 2, 4, 5, you add dot number 6, you get 1, 2, 4, 5, 6. H plus 6, H is 1, 2, 5, you add 6, you get 1, 2, 5, 6. I is 2, 4, you add 6, you get 2, 4, 6. And J is 2, 4, 5, to that you add dot number 6, you get 2, 4, 5, 6. Now mind you, this 2, 4, 5, 6 is the letter W in English literature. In English language, 2, 4, 5, 6 is W, which you do not have in the French alphabet. So if you want to add from U to Z, you will say U, V, X, W, X, Y, Z. Then after V, you will have to add this, which W actually belongs to the fourth line and not in the third line. So far how many characters have we covered? We have covered 4 lines and 10 characters in each line. How many characters? 40 characters. 40 characters so far हो गया, 40 हो गया. Now बाकी रहा 23. We've gone more than halfway. Now what is the fifth line? The speciality of the fifth line is that you would see that in the first line we only covered dot number 1, 2, 4 and 5. We excluded dot number 3 and 6. Here it would be, which is technically known as lower ABCD. Instead of excluding 3 and 6, we would, in the first line, we would now exclude 1 and 4 in the fifth line. Now A was, what was A? Dot number 1, and 1 we are not going to touch. So what was 1, 2, 4, 5 will now come to the lower level, which would be 2, 3, 5, 6. We are excluding dot number 1 and 4. Okay. So 1 and 4 exclude करने के बाद the lower A was 1, you come down one step below, automatically it will become 2. B was 1, 2, you come down one step below because you are not going to use 1, it would become 2, 3. On the left hand side you understand you have 1, 2, 3, and on the right hand side you have 2, 4, 5, 6. So by excluding the top one, you can still write the same character. It looks the same like ABCD, but it is the lower cell. That is why it is known as lower ABCD. The open line is upper ABCD, the lower line is lower ABCD. The character would be the same. It looks the same, but the dot numbers are different. C was 1, 4. You come down one step below, it becomes 2, 5. Instead of using the top 2 dots, you use the middle 2 dots. D was 1, 4, 5, and the lower level would be 2, 5, 6. वो दिखा रहे हो आप इसमें? हाँ. E was 1, 5. You come down one step below, it comes to 2, 6. F was 1, 2, 4. You come down one step, lower F would be
2, 3, 5. Low G was 1, 2, 4 and 5. The lower level would be 2, 3, 5 and 6. G was 1, 2, 5. When you come down lower, it would become 2, 3, 6. I was 2, 4. You come down one step below, it would become 3 and 5. And J was 1, 4, 5. The lower J would be 3, 5, 6. So this is the fifth line, consisting of again the same characters. So how many characters we have discovered so far? The alphabets are, the characters are 50 in number. 10 in each line. We've covered already 5 lines. So 5 into 10 is 50 characters. Now the 6th and 7th line is very interesting. And for that I would like you to concentrate. The 5th line would consist of each character which would have dot number 3. But such characters which were not covered in any of the first 5 lines. पहले 5 लाइन में जो भी डॉट नंबर 3 लगे हुए हैं, वो डॉट नंबर 3 आपके बहुत सारे और कैरेक्टर्स हैं जिसमें वो कवर नहीं हुए हैं. फॉर इंस्टेंस ओनली डॉट 3, केवल डॉट 3 आपका फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन कहीं भी नहीं है. तो ये हो गया फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ फिफ्थ लाइन. सिक्स्थ लाइन में फर्स्ट कैरेक्टर है डॉट नंबर 3. सिक्स्थ लाइन में 6 कैरेक्टर्स है. फर्स्ट वन इज डॉट नंबर 3. द सेकेंड वन इज डॉट नंबर 3 and 4. 3 and 4 देखिए आपका फर्स्ट 5 लाइन में कहीं भी नहीं है. The third character is 3, 4 and 5. This character you will never find in any of the first 5 lines. The fourth character is 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. And the fifth character is 3, 4, 6. ये कहीं नहीं है. And the sixth character in the sixth line, the last character is dot number 3 and 6. I again repeat the sixth line. First character is dot number 3. Second character is 3, 4. The third character is 3, 4, 5. The fourth character is dot number 3, 4, 5, 6. The fifth character is dot number 3, 4, 6, and the last character is dot number 3, 6. So far how many characters have we discovered? Tell me. First 5 lines में कितने थे? 10 characters in each line. So first 5 lines में कितने थे? Total 50 characters. 50, and then we have covered 6 more in the 6th line. Yes, so total 56 characters. 56 characters हो गया. Okay. Now we come to the 7th line, which again consists of 7 characters. The speciality of the 7th line is we make use of only dot number 4, dot number 5 and dot number 6. केवल ये, we are not going to make use of the dot number 1, 2, 3. राइट हैंड पे जो आपका डॉट नंबर 4, 5, 6 है, इससे वी कैन गेट 7 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. एक तो केवल डॉट नंबर 4 हो गया, दूसरा डॉट नंबर 5 हो गया, तीसरा डॉट नंबर 6 हो गया. So out of the 7 we have already covered 3. Dot number 4 is 1, dot number 5 is 1, this second, and dot number 6 is the third one. The fourth is dot number 4, 5. The fifth is dot number
4, 5, 6. The sixth is dot number 4, 6. And the seventh is dot number 5, 6. ये आपके स्लाइड में है ना ये सारा. So 7 characters in the 7th line, 6 characters in the 6th line, and 10 characters in each of the lines from 1 to 5. ठीक है. हमारे हिंदी नॉर्थ इंडियन वालों के लिए मैं फिर थोड़ा सा हिंदी में बता दूं. हमने जैसा कि आपको बताया कि ब्रेल के 6 डॉट की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से घुमा फिरा के हमको 63 पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिल सकता है. और इंग्लिश अल्फाबेट जो है, इंग्लिश की जो वर्णमाला है वो सिस्टमैटिक है. फ्रेंच जो भाषा थी वो भी बड़ी सिस्टमैटिक थी. और जिसको ए से जे तक पहली 10 कैरेक्टर्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जिसको ये 10 डॉट अल्फाबेट्स का डॉट नंबर मालूम हो तो बाकी सारे कैरेक्टर्स वो कर सकता है बाय एडिंग डॉट नंबर्स. पहली लाइन जो ए से जे तक है उसके साथ एक एक कैरेक्टर के साथ आप डॉट नंबर 3 ऐड करिए तो आपको सेकंड लाइन मिल जाएगी. डॉट नंबर ए से जे तक यदि 10 हो और हर एक कैरेक्टर के साथ यदि आप डॉट नंबर 3 ऐड करें तो आपको और 10 लेटर मिल जाएगा. KLMNOPQRST, तो ये 20 हो गया. सिमिलरली ये इसका मतलब आपने अभी तक 20 कैरेक्टर्स कर लिया, सेकेंड लाइन कंप्लीट हो गया. थर्ड लाइन में आपकी फर्स्ट लाइन के साथ ऐड करना पड़ेगा डॉट नंबर 3 और 6 दोनों. या आप कह सकते हैं कि सेकेंड लाइन के साथ आप डॉट नंबर 6 लगा दीजिए. लेकिन छोटे बच्चों को याद रखने के लिए इतना ही आसान है कि भाई पहली लाइन का 10 कैरेक्टर उसको याद है, उसके साथ वो 3, 6 लगा दिया तो नेक्स्ट कैरेक्टर्स उसको मिल जाएगा. और आप बोलोगे सेकेंड लाइन के साथ तो बोले यार इसका मतलब मेरे को K से T तक याद करना पड़ेगा तब जाके मेरे को बनेगा. तो इसलिए पहली लाइन के साथ डॉट नंबर 3, 6 लगाने के बाद आपको नेक्स्ट लेटर्स मिलेगा. U से लेकर Z तक तो है ही, लेकिन और भी वर्णमाला होती है हिंदी में जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा. क्या बनता है, क्या उसका शॉर्ट फॉर्म है, हिंदी में कौन सा अक्षर है, अभी मैं उसकी चर्चा में नहीं जाना चाहूँगा. आपको 63 डॉट्स की कॉम्बिनेशन ही बता देना चाहता हूँ. तो थर्ड लाइन आपकी हो गई बाय एडिंग डॉट नंबर 3 और 6. चौथी लाइन आपकी क्या होगी? पहली लाइन के साथ आपको डॉट नंबर 6 ऐड करना पड़ेगा. पहली लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर ए का डॉट नंबर था 1, उसके साथ 6 ऐड करने के बाद क्या होगा? 1 और 6 होगा. बी का डॉट नंबर 1, 2 था, उसके साथ आप 6 ऐड करेंगे तो 1, 2, 6 हो जाएगा. सी का डॉट नंबर 1, 4 था, उसके साथ आप 6 ऐड करिए तो 1, 4, 6 हो जाएगा. डी के साथ आप डी का डॉट नंबर था 1, 4, 5, उसके साथ 6 ऐड करिए तो हो जाएगा 1, 4, 5, 6. ई 1, 5 था, उसके साथ 6 ऐड किया तो हो गया 1, 5, 6. एफ हो गया 1, 2, 4, उसके साथ आप ऐड करें 6 तो हो जाएगा 1, 2, 4, 6. जी के साथ 6 ऐड करने से जी था 1, 2, 4, 5, उसके साथ आप ऐड करिए 6 तो हो गया 1, 2, 4, 5, 6. H था 1, 2, 5, उसके साथ आप ऐड करें डॉट नंबर 6 तो हो गया 1, 2, 5, 6.
आई था डॉट नंबर 2 और 4, उसके साथ आप ऐड करें 6 तो हो गया 2, 4 और 6। सिमिलरली जे के साथ आप डॉट नंबर 6 ऐड करिए, जे वॉज 2, 4, 5, उसके साथ आप ऐड करिए डॉट नंबर 6 तो होगा 2, 4, 5, 6। और इंग्लिश अल्फाबेट में ये जो 2, 4, 5, 6 है ये लेटर W होता है। हिंदी में क्या होता है वो तो मैं बाद में बताऊंगा। ये आप देखिए लेटर W है, ये आपकी चौथी लाइन में है। हालांकि U से Z तक हमने केवल डॉट नंबर 3, 6 का किया था। W चौथी लाइन में है क्योंकि फ्रेंच अल्फाबेट में W था नहीं, इसलिए। तो अभी तक हमने कितनी लाइन क्लियर किया है? पहली लाइन तो A से J, दूसरी लाइन के साथ 3 ऐड किया, तीसरी लाइन के साथ हमने 3 और 6 दोनों ऐड किया, तो कितने अक्षर हुए? 30 कैरेक्टर्स हो गए। हाँ, 30 कैरेक्टर्स हो गया, 30 कैरेक्टर्स हो गया। अब चौथी लाइन में हम जाएंगे। आप याद रखिए पहली लाइन में हमने 3 और 6 का इस्तेमाल नहीं किया था। दूसरी लाइन में हमने पहली लाइन के साथ डॉट नंबर 3 का इस्तेमाल किया। तीसरी लाइन में हमने पहली लाइन के साथ डॉट नंबर 3, 6 का इस्तेमाल किया। अब चौथी लाइन में हम केवल डॉट नंबर 6 ऐड करेंगे फर्स्ट लाइन के साथ। पहली लाइन में जो कैरेक्टर्स है 10, हर एक के साथ हम एक एक डॉट नंबर 6 ऐड करेंगे। ए का डॉट नंबर था 1, उसके साथ हमने 6 ऐड कर दिया तो हो गया 1 और 6। बी वॉज 1, 2, ये हो गया 1, 2, 6। सी 1, 4 था, वो हो गया 1, 4, 6। डी 1, 4, 5 था, आपने 6 ऐड कर दिया, वो हो गया 1, 4, 5, 6। ई था 1, 5, उसके साथ आपने 6 ऐड किया तो 1, 5, 6। एफ था 1, 2, 4, उसके साथ डॉट नंबर 6 ऐड किया, देन यू गेट 1, 2, 4, 6। जी था आपका 1, 2, 4, 5, जिसके साथ 6 ऐड करने के बाद हो गया 1, 2, 4, 5, 6। H का डॉट नंबर था 1, 2, 5, उसके साथ आपने 6 ऐड कर दिया तो हो गया 1, 2, 5, 6। आई था 2, 4, उसके साथ आपने 6 ऐड किया तो हो गया 2, 4 और 6। और जे का डॉट नंबर था 2, 4, 5, उसके साथ आपने 3 ऐड किया तो ये हो गया 2, 4, 5, 6। तो अभी 4 लाइन में कितने कैरेक्टर्स हो गए? 40 कैरेक्टर्स। 40 कैरेक्टर्स, 10 40 in each line। हाँ, 10 in each line। हमने जैसा आपको बताया कि 63 कैरेक्टर्स हो सकता है, तो अभी तक हमने केवल 40 कवर किया है। अभी दिल्ली दूर नहीं है और 23 बाकी है। 5वीं लाइन में क्या होगा? पहली लाइन में आपने जैसा देखा होगा कि हमने डॉट नंबर 1, 2, 4 और 5 को यूज किया और डॉट नंबर 3 और 6 का इस्तेमाल हमने किया ही नहीं। 5वीं लाइन में हम उल्टा करेंगे, हम 1 और 4 को नहीं करके 2, 3, 5, 6 से वही बनाएंगे ABCD का शेप में ही। पहली लाइन में देखिए ये जो आपका ये था उसमें नीचे का जो 3 और 6 हमने इस्तेमाल नहीं किया था, ऊपर का और बीच का 2 डॉट्स का 1, 2, 4, 5 का इस्तेमाल किया था। सिमिलरली 5th लाइन में हम पहले के ऊपर के जो 2 डॉट्स है 1 और 4, 1 और 4 को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और ABCD जैसा ही बनेगा। A था डॉट नंबर 1 और 1, 4, 1 यूज नहीं करना, इसलिए हम नीचे आ गए, 2 में आ गए, तो डॉट नंबर 2 से लोअर A हुआ। B था 1, 2, 1 तो इस्तेमाल नहीं करना है,
तो हो जाएगा 2 3। इन अदर वर्ड्स जो ऊपर का 1 था वो फिफ्थ लाइन में 2 हो जाएगा, और ऊपर का जो 2 था फर्स्ट लाइन में वो फिफ्थ लाइन में 3 आ जाएगा, और फर्स्ट लाइन में ऊपर का जो 4 था वो 5 हो जाएगा, और जो आपका डॉट नंबर 4 था वो डॉट नंबर 6 हो जाएगा। 1 और 4 को हम नहीं यूज करेंगे, हम केवल 2 3 5 और 6 को यूज करेंगे। तो लोअर ए हो गया डॉट नंबर 2, 1 नहीं कर रहे इसलिए। लोअर बी हो गया डॉट नंबर 2 3, 1 4 नहीं यूज करना है, याद रखिए। लोअर सी हो गया, या रादर इट इज समटाइम्स नोन एज मिडिल सी। मिडिल सी हो गया डॉट नंबर 2 और 5, 1 4 था, एक स्टेप नीचे आ गया। डी हो गया, लोअर डी हो गया 2 5 और 6। लोअर ई हो गया 2 और 6। लोअर एफ हो गया डॉट नंबर 2 3 और 5। लोअर जे हो गया, एफ के बाद जी, लोअर जी होगा डॉट नंबर 2 3 5 6। लोअर एच विल बी 2 3 6। लोअर आई वुड बी डॉट नंबर 3 और 5। 1 और 4 का तो इस्तेमाल नहीं करना है, एक स्टेप नीचे आ गया। जे होगा, लोअर जे होगा, अपर जे तो था आपका 2 4 5, अब ये हो जाएगा 3 5 6। तो ये आपकी 5वीं लाइन हो गई। कितने कैरेक्टर्स हुए अभी तक? 50 कैरेक्टर्स। 50 अक्षर हो गया। अब दिल्ली दूर नहीं है, और केवल 13 बाकी है। जैसा हमने आपको बताया 63 पॉसिबल कॉम्बिनेशन से होता है। अब आप देखिए, छठी लाइन में 6 कैरेक्टर्स है, और उसकी विशेषता यह है कि हर कैरेक्टर में डॉट नंबर 3 कॉमन है, लेकिन वही डॉट नंबर 3 कॉमन है जो पहली लाइन में तो खैर डॉट नंबर 3 आता ही नहीं है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, इनमें कहीं भी ये डॉट नहीं मिलेगा आपको। केवल डॉट नंबर 3, ये पहला कैरेक्टर हो गया छठी लाइन का। डॉट नंबर 3 4 हो गया सेकंड कैरेक्टर। डॉट नंबर 3 4 5 ये हो गया तीसरा कैरेक्टर। डॉट नंबर 3 4 5 6 ये हो गया चौथा कैरेक्टर। डॉट नंबर 3 4 6 ये हो गया 5वां कैरेक्टर, और डॉट नंबर 3 6 हो गया छठा कैरेक्टर। तो 50 था ये पहले 5 लाइन में, और 6 कैरेक्टर्स छठी लाइन में आ गया। तो कितना हुआ? टोटल 56 कैरेक्टर्स। 56 कैरेक्टर्स हो गया, और केवल 7 कैरेक्टर्स है जो 7वीं लाइन में है। 7 कैरेक्टर्स इन द 7th लाइन। 7th लाइन की विशेषता यह होगी कि we will not cover dot number 1 2 and 3. We will make use of only the 3 dots, dot number 4 5 and 6, और 4 5 6 का इस्तेमाल करके we get 7 possible combinations। एक तो केवल 4 हो गया, only dot number 4, that is the first character। केवल 5 हो गया, वो हो गया सेकेंड कैरेक्टर। केवल 6 हो गया, ओनली डॉट 6 इज द थर्ड कैरेक्टर। और हो गया 4 5 फोर्थ कैरेक्टर। 4 5 6 हो गया फिफ्थ कैरेक्टर। 4 6 हो गया सिक्स्थ कैरेक्टर, और 5 6 हो गया
7th कैरेक्टर। तो ये अभी हमने आपको 63 पॉसिबल कॉम्बिनेशन 63 डॉट्स की जो कॉम्बिनेशंस है उसके बारे में हमने बता दिया। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस और फ्रॉम द व्यूअर्स वी वुड वेलकम क्वेश्चंस। देखिए आपके उसको कुछ आ रहा है? नहीं सर, अभी तक तो कोई प्रश्न नहीं क्वेश्चन नहीं आया है। सो दिस इज द एक्सरसाइज दैट आई हैव डन। आई हैव कवर्ड द 7 लाइन्स और अब हम आपको कुछ लेटर्स बताएंगे और आप हमको डॉट नंबर बताइएगा। इसका डॉट नंबर क्या होगा? बाएं बाजू में 3 है और दाहिना बाजू का बीच है, बीच वाला है। वी हैव 3 डॉट्स ऑन द लेफ्ट, 1 2 3 and the middle dot in 5. the right hand side. So this is dot number 1 2 3 5. Now if we reverse this, what do we have? We have dot number 2 4, on the 5, right hand 6. side and dot number 4 5 6 on the right side. Okay, let me go with my cube now. What are the dot numbers over here? Can you see them? They are dot number 1 2 and 3. They are only on the right hand side and nothing on the left hand side. Okay, what about this? Dot 4 5 6. Dot number 4 5 6, because 1 2 3 is not there. Okay, what about this? Dot 1 2 3 5 6. Very good. I hope the viewers are also following it. What about this? Sir, this is dot 2 3 5 6. 1 and 4 dot is not there. Not there, right. So can you tell me which line this belongs to? By excluding 1 4, we come to the which line? 5th line. 5th line. Very good. Is a lower G. Or lower G. What about this? Dot 2 3 4. 2 3 4. Okay, this would be in which line? This is in 4th line. Huh? 4th line. 2 3 4. 3 है खाली। 4th line कहाँ से आएगा? Dot number 2 3 and 4. 2 4 is I. So Second line. second line. Okay. You have to correct this. Now what about this? What are the dot numbers of this? Dot 3 4 5. This would be in which line? This would be in which line? I think this is in 6th line. 6th line. Very right. Okay. What is this? Dot 1 2 4 5. Which line? So In first line. First line. First line. Okay. You've done good for homework. What about this? Dot 1 2 6. This would be in which line? 7th line. 6 only 6 है ना? 1 2 तो है. Yes sir. Dot तो 6 1 भी है. 6 तो है लेकिन 1 2 would be excluded. 1 2 3 will not be in the 7th line. मैंने बताया. In the 4th line. This would be in the 4th line. 4th line. Very good. What is this? Dot 3 6. Yes, this would be in which line? This is in line 5th. Line 6. Line 6. Okay? So this is the way we go on with this 63 basic possible combinations. Now I would like to invite questions, or I would ask these people to the problem is that we don't get the voice of the viewers. If they have any question, they can ask and I'll be happy to clarify. सर जैसे ये तो हमारे अल्फाबेट्स के हो गए, हाँ, तो ये मतलब डॉट्स तो जैसे ए का हो गया तो सिंगल डॉट 1 हो गया। अगर हम वर्ड्स लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? तो हम इसको कैसे यूज करेंगे? कॉम्बिनेशंस में यूज करेंगे या नेचुरली सपोज इफ यू वांट टू राइट कैट तो सी लिखेंगे डॉट नंबर 1 4, नेक्स्ट लाइन में ए लिखेंगे नेक्स्ट डॉट सेल में, यस सर। एंड द थर्ड लाइन में टी लिखेंगे डॉट नंबर
2 3 4 5. सर ये तो जैसे छोटा वर्ड हो गया, अगर बड़ा वर्ड है, मान लीजिए नेसेसरी है वर्ड, हाँ तो लिखेंगे हाउ तो डज सर सबके डॉट्स लिखेंगे या कोई हम कॉम्बिनेशन नहीं, देयर इज एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शंस है जिसके बारे में आई विल कम टू दैट लेटर ऑन. आई डोंट वांट टू कम टू द कॉन्ट्रैक्शंस टुडे. दैट वुड बी माय थर्ड लेक्चर which is next Tuesday. If I am here, I'll be happy to discuss. I'll So- request our viewers to ask if they have any queries regarding the Braille. And the number is 1800112008 265111613. हमारा फैक्स नंबर है 265111609. Now we are moving with our discussion. Sir, next. So 63 possible combinations के बारे में I have given you the idea. And what are those combinations? How are they useful? कौन सी लेटर क्या बनता है, हिंदी में क्या बनेगा, इसके बारे में we will discuss in the next session. But I don't want to get into the intricacies. Can you tell me whether this is small ABCD or capital ABCD? So this is small ABCD. How do you know this is small ABCD? Why not the capital? It is actually the small ABCD. Now the purpose of this ABCD, the alphabet, is that if you want to write a capital A or capital B or capital whatever letter, you have to write dot number 6 in the first cell and then dot number 1 in the second cell. Means In- dot number 6 is referring to the capital. The dot number 6 is the capital sign. So unfortunately आपका A to Z लिखने में small a में तो एक सेल में ही हो जाता है, but capital ABCD लिखने के लिए आपको पहला सेल में 2 सेल यूज करना पड़ेगा. एक सेल छोड़ते हैं हम. नहीं, बीच में कोई छूटता नहीं. फर्स्ट सेल में केवल 6 और सेकंड सेल में डॉट नंबर 1. सर जैसे हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, नया सेंटेंस स्टार्ट होता है, हाँ. तो अगर हमने जो पहला सेंटेंस फिनिश किया उसके बाद हम गैप देते फुल हैं. स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप आ गया ना. हाँ जी, full फुल stop स्टॉप के का बाद sign. डायरेक्ट डॉट 6 करके फिर हम स्टार्ट हाँ करते हाँ, हैं. एक सेल छोड़ के जी सर. एक वर्ड के बीच में जो गैप है, सपोज इफ यू वांट टू राइट ए कैट, तो ए लिखने के बाद एक सेल छोड़ेंगे, फिर CAT कैट लिखेंगे. ठीक है. तो कैपिटल साइन, कैपिटल लेटर्स लिखने के लिए हमको डॉट नंबर 6 का इस्तेमाल करना पड़ता है. वी हैव टू मेक यूज ऑफ डॉट नंबर 6 टू डिनोट दैट द लेटर इज नॉट अ स्मॉल लेटर, इट इज अ कैपिटल लेटर. नाउ सपोज all the alphabets in the word are capital, then what do you do? Do you add 6 to each character? सर इट विल बी अ मेस, तो आई थिंक उसके लिए कुछ दूसरा डॉट. मैं बता रहा हूं. if all the letters of the word are in capital, then you have to use dot 6 twice. First cell में dot 6 दिया, second cell में आपने फिर dot 6 दिया, and then you write the word whatever. say world लिखना है तो WORLD या BRL Braille, BLIND blind लिखना हो, and if you want to say that all of them are capital, then you put dot number 6 in the first 2 cells. First cell में 6, second cell में 6, and then all the other letters would be small. जैसे एग्जाम्पल की अगर हम यूनिसेफ लिखते हैं वो सारे कैपिटल में होते हैं. हाँ, तो then dot number 6 2 बार आएगा, जी. 2 सेल में, then UNICEF आएगा. जी सर. Okay. Similarly, ये तो हो गया आपका कैपिटल साइन. Now let me also tell you about the other signs. कॉमा कैसा होता है? What is the dot number of comma? It's dot number 2. Semicolon is dot number 2 and 3. कौन सी लाइन में आएगा ये? Any idea? सर लाइन 1 2 3 में तो आएगा नहीं, क्योंकि नहीं. उसमें अल्फाबेट. हाँ हाँ. It is in fifth line. It is in the 5th line.
25 is colon. सेमीकोलन है, कोलन भी है ना. आई डोंट नो हिंदी में क्या कहते हैं आप, बिकॉज आई डोंट नो मच ऑफ हिंदी. 25 इज कोलन. 256 इज फुल स्टॉप या पूर्ण विराम जिसको आप कहते हैं हिंदी में. 256 ये फुल स्टॉप का साइन है. एंड दिस वुड बी अगेन इन विच लाइन? फिफ्थ लाइन. फिफ्थ लाइन, लोअर डी. तो ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो फिफ्थ लाइन में आते हैं. मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम. जी. एक्सक्लेमेशन मार्क, व्हाट इज आश्चर्य, उसको हिंदी में क्या कहते हैं यार? विस्मयबोधक चिन्ह. हाँ, उसका डॉट नंबर होगा 1, 2 एंड 2, 3 एंड 5. ओके. क्वेश्चन मार्क, question mark would be dot number 1, 3, 6. Sorry, I don't know. 2, 3, 6. So all these characters in the fifth line are basically punctuations. जैसा कि अभी तक हमने देखा कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो 63 कॉम्बिनेशंस ब्रेल में बनते हैं वो कौन कौन सी लाइन में आते हैं और कौन कौन से डॉट्स उसमें हम यूज करते हैं. और जैसे कि कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हम लाइन 5 में यूज करते हैं और बाकी के हम पंक्चुएशन मार्क्स देखेंगे. दिस इज अ टाइम फॉर अ ब्रेक. विल कंटिन्यू आवर सेशन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. थैंक यू. Welcome back, where we were discussing about the braille teaching and different dot system in that, जिसमें हमने सीखा कि different combinations होते हैं और कहाँ पे हम कौन सा अल्फाबेट किस डॉट सिस्टम के साथ हम यूज कर सकते हैं. यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. RCI का नवशिखर चैनल एक प्रोग्राम इनॉग्रेट कर रहा है. इन प्रोग्राम इज फॉर लर्निंग कंप्यूटर्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 11 जुलाई एंड इसका लाइव टेलीकास्ट होगा 2 to 4 एवरी थर्सडे एंड विद द प्रोग्राम डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन हियरिंग इम्पेयरमेंट. और आज जो हम ब्रेल टीचिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं इसका लाइव टेलीकास्ट होगा एवरी ट्यूसडे फ्रॉम 10:15 to 12:15 और इसका रिपीट टेलीकास्ट होगा 2 to 4 PM. और लर्निंग कंप्यूटर्स का प्रोग्राम जो है एवरी वेडनेसडे और फ्राइडे होगा लाइव टेलीकास्ट फ्रॉम 10:15 to 11:15. Now we are continuing with our discussion where we were discussing different dot system in braille. Sir, carry on. So far हमने आपको कुछ punctuations के बारे में बता दिया है. Now how do we write numbers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कैसे लिखते हैं? There is a sign which is known as a number sign, numerical sign. The dot numbers are dot number 3, 4, 5 and 6. 3, 4, 5, 6 वो है तो मेरे को दिखा. You can understand this is 3, 4, 5 and 6. This would indicate कि इसके बाद यदि A हो तो 1 होगा, इस साइन के बाद यदि B हो तो 2 होगा. But suppose if you want to write 12, तो this 3, 4, 5, 6 will not be used twice. 3, 4, 5, 6 के बाद आपने A और B लिख दिया और writing A in the second cell and B in the third cell, you get 12.
if you write say dot number 3 4 5 6 and then A and E, तो क्या नंबर बनेगा? 15. 15. Very good. If you write this number sign and then B and G, B plus G would be what? 27. That's right. Very good. So this is the number sign by which you can make use of the number sign. सर ये जो आपने नंबर साइन बताया 3 4 5 6 जो डॉट हम यूज करते हैं, हाँ ये सबके लिए यूज करते हैं अगर हम रोमन में लिख रहे हैं इसको? हाँ, रोमन के लेटर में आई एम कमिंग टू दैट लेटर ऑन. दिस इज द अरेबिक नंबर्स 1 to 10 तक लिखते हैं. अब रोमन फिगर के लिए द साइन इज डॉट नंबर 5 6 ओनली है. कोई देखा? डॉट नंबर 5 6 के बाद नहीं होगा. नहीं, जो 7th वो मेरे को बी दिखा देना, उसको उल्टा करने से तो हो जाएगा. शो में बी. दिस इज डॉट नंबर 5 6. रोमन 1 is what? I. Okay? Roman 2 is I. Roman 3 is triple I. So by putting this 3 6 and then adding I in the next cell would be what? Roman साइन के बाद I लिखा तो 1 बनेगा. 2 बार I लिखा then it would be 2. 3 बार I लिखने से it will be 3. Okay? What about 4? How do you write 4? See, there are basically 3 characters which you have to remember in the Roman script. I stands for 1, V stands for 5, and X stands for 10. Now, for 4 you have to write I and V. V is 5. Any letter, if 1 is preceded before 5, that means 5 minus 1. That becomes 4. So 4 would be what? This sign 5 6, I and V. 5 would be 5 6 and V. V stands for 5, ना? तो सर 6. इसमें जैसे 5 लिखना है तो डॉट 5 6 और डॉट फिर V का हम यूज करेंगे? हाँ, नेक्स्ट सेल में V, which is dot number 1 2 3 6. Now 6 is what? 5 plus 1. तो 5 के लिए आपने you wrote V, and for 1 you write I. So VI is 6. Okay? VII would be what? 7. 7. V plus 2 is 5 plus 2 is equal to 7. VII would be 8. 8. Okay. Now what about 9? You cannot repeat a letter more than thrice in Roman. 9 would be 10 minus 1. So पहले I आएगा and then X आएगा. X stands for ये. So IX is equal to Roman 9. X is equal to 10. 10. Okay, so 1 to 10 आपको बता दिया. Similarly, if you want to write 15, what would you do? The Roman sign plus X और V. X and V. Okay? What about 19? सर X फिर I फिर X. Right. X stands for A, IX stands for 9. So 10 plus 9 is equal to 19. What about 31? सर ट्रिपल X Ah, और I. I. Very good. That's good. धीरेन्द्र, आप भी बताओ. इसके लिए आप बता सकते हैं सर ये वाला 5 6 के लिए कॉम्बिनेशन, हाँ, अगर आप लिखना चाहें तो ये एक कॉम्बिनेशन मैंने बना के दिया है. ये देखिए इसमें अच्छा. 5 6 है नीचे वो रोमन के लिए, और उस पे I है और उसके बाद 5 है. So this is 4.
right? Hmm. ये एक्चुअली बनाना पड़ेगा. I'll make this say later on also. We'll devise those systems. And so Roman figures का साइन भी हमने आपको बता दिया. तो ये वहाँ पे यूज हो सकते हैं जैसे हम पॉइंट्स वगैरह लिखते हैं. अगर हम रोमन नंबर्स यूज कर रहे हैं तो पहले हम .56 और फिर जो नंबर है उस हिसाब से रोमन नंबर यूज करके फिर हम कंटिन्यू करेक्ट. करें. हाँ, चलिए आपने 1, 5 और 10 का तो सीख लिया. What is the sign of 50 in Roman? Any idea? सर 55 टाइम x. नहीं, 3. I told you एक लेटर को आप 3 बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकते. L stands for 50. ओके, आपको 40 लिखना हो तो क्या करेंगे? 50 minus 10. That means XL. ठीक है. Yes, L के बाद यदि X आ गया तो then what would it be? 60. 60. Okay, धीरेन्द्र, right? जी सर. तुम भी रिस्पॉन्ड करो. और अगर L के पहले x आता है तो मतलब माइनस पे. हाँ, anything before the higher number means it is less. Anything after the higher number That means is the plus sign. value. हाँ, more value, higher value. ठीक है. So Roman figures भी हो गया, न्यूमेरिकल साइन हो गया, कैपिटल साइन हो गया, बाकी पंक्चुएशंस का कुछ साइंस हमने बता दिया. अगर कोई नंबर सर इटैलिक है तो उसके लिए Now what about italics? I'm glad you asked this. भाई ABCD का आपका जैसा रिंग प्रिंट वो तिरछा लिखते हो ना, इट्स अ बिट कर्व्ड वे में लिखते हैं आप इटैलिक्स में. सो उसके लिए यू विल हैव टू यूज डॉट नंबर 36. सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, 46. इटैलिक 46 इज इटैलिक साइन. आफ्टर स्टार्टिंग द लेटर. ठीक है. 46A would be, it is italics A. 46B would be italics B. If the whole word is in italics, then you write this 46 and then you write the alphabets. Now suppose पूरा sentence ही italics पे है. The entire sentence is in italics. What do you do? Then you have to add 4646 twice. जैसे हमने कैपिटल साइन में किया था. And then write the whole sentence. Say UNESCO and UNICEF. पूरा ही आप italics में लिखना चाहते हैं. Then you write 46 and then write UNESCO and then UNICEF जो last word है, जहाँ पे लास्ट वर्ड है उसके पहले आपको डॉट नंबर 46 लगाना पड़ेगा. सर जैसे ये हम इटैलिक्स में भी लिख रहे हैं लेकिन ये पूरे दोनों वर्ड्स कैपिटल में भी हैं, तो हम दोनों को कैसे पहले कौन सा यूज करेंगे, इटैलिक्स वाला साइन या कैपिटल वाला साइन? नहीं, पहले इटैलिक्स वाला साइन एंड देन कैपिटल वाला साइन. तो उनके बीच में कोई सेल छोड़ते हैं या कॉन्टिन्यूएशन? नहीं, इन कंटिन्यूएशन चलेगा. इट विल बी इन कंटिन्यूएशन एंड वो सेल नहीं छोड़ना पड़ेगा. जी सर. ओके. सो ये हो गया italic sign. There are quite a few other signs also. What about inverted commas? Any idea? Inverted comma लोअर जी. ओपन का साइन जो है, it is lower h. Dot number 256 is a sign of inverted commas open. Inverted comma close के लिए lower j या dot number 356. Now there would be no gap. Suppose inverted commas the man said. The man said inverted commas में he was good. Suppose inverted commas में है. Then inverted commas का साइन आप देंगे डॉट नंबर 236 and then immediately in the next cell you write he and then leave a gap and then write was or whatever words you have.
सर जैसे इन्वर्टेड कॉमा से हम सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं हाँ। और अगर सेंटेंस का फर्स्ट कैपिटल लेटर है तो पहले हम कैपिटल का साइन डालेंगे फिर ब्रैकेट, नहीं, इन्वर्टेड कॉमास का साइन पहले आएगा, फिर बाद में कैपिटल। बाद में कैपिटल आएगा। ओके। यस सर।